the world of work in order to make a career, educational, and life decisions for getting yourself sustained for future readiness and for the achievement of the goal in your life. With this note, it gives me an immense happiness and honor to invite our respected director, Dr. Divya Chaudhary, to enlighten her views on this session. Over to you, ma'am. Thank you, Pawan, so much. And once again, good morning, Sudhanshu ji. Good morning, Arun ji, faculty members, and dear students. Very good morning. Students, as we are approaching towards the final placement, it's more important to have sincere guidance and be ready for any workforce to thrive the competition better in the future, as well as be ready with the skills to learn, to plan, and to think also. I just read yesterday, Gray Settle, he is an innovation advisor and keynote speaker. He said, well, in 10 or 20 years, much of what we know about the world would no longer be true. And that is very true. What is new today will be obsolete tomorrow. Whatever new technologies, programming, languages we are learning today will go at the back end and new things will be coming up. So the inventions will be demanding innovations tomorrow. But students, if we look into it, what will remain with us is skills. These skills which you will acquire today will help you to become better managers, entrepreneurs, businessmen, researchers, programmers, developers, or whatever lies ahead in your life, whatever it is. And that is what is career counseling is. A career guidance. It is basically a design that will help you to choose, to learn, even to leave a career or help you to plan yourself at any stage of life. Especially in a time like today, which is like we never knew yesterday that what is coming ahead of us. But the time like today when there is an outbreak of pandemic, when especially if we look into the economic factors, then the economic difficulties like recession, such factors can be stressful, especially at a time when you are embarking on a new career for the first time. So here a career counselor can help you by outlining and designing upon various potentials which you have and can help you in this field. You know, what I understand, I keep on talking to you also on this, that what is important is to understand that the passion which we have, the love, the enjoyment factor should always be there for whatever career we opt for, because until unless we will not love what we do, we will not be able to give our 100% to it, as well as not only this giving 100% to it, you have to prioritize your new needs related to skills that will help you to make your career better, which will help you to brighten up your futures. Because you see, we cannot teach you the new technology or the new technical knowledge which will be coming in future, because we also do not know that. But of course, we can help you to be future ready with the soft skills that will be applicable no matter what the technological environment looks like. That is why we also make our constant efforts to make you learn new things apart from your educational concept. We help you to develop your future ready skills, which always go hand in hand. The strength of one is built over the strength of the other. This we all know. For example, like if we see, then the project work which teachers give you, at the end, what do they ask from you? They ask you to showcase what you have done. Similarly, the various quizzes which we ask you to participate, the various mock interviews, what are these? These are actually the exit tickets which we try to give you to make you a complete wholesome person. So I think these are the few things
which will be the highlight of today's talk also. So let's listen to our other eminent speakers also. But before leaving this, we would like to discuss this in future also in depth. I would just leave you with certain tips, tips related to what the concept and qualities, which if you keep in mind and not be able to master the entire all tips, but even if you can master 4 or 5, I would be very happy, because I and everybody understand that we cannot be perfect, but yes, we can walk toward perfectionism certainly. Tips like creativity, communication, negotiation, decision making, people management, service orientation, tips like cognitive flexibility, that is flexibility towards communication, cognitive flexibility towards problem solving, that is your potential towards problem solving. I think what today Arunin ji or Sudhanshu ji is going to speak, you all can think and put these under these headers and can certainly plan to focus on your future soft skills. With this, I think we should go ahead and go for happy learning. Thanks a lot, ma'am, for your such a valuable speech and views for enlightening the session today. Heartily thanks. Now, I have the honor to introduce and to invite Dr. Shidhanshu Rai, Chief Employment Bureau, CSGM University, Kanpur. Sir, over to you. Thank you very much, Pawan. Thanks a lot, sir. Firstly, I'd like to thanks to Director, Jagar Institute of Management, Dr. Divya Chaudhary, the keynote speaker of this session, Dr. Arunin Soni, and Pawan, and all others, faculty members and the students. एक बहुत ही अच्छा सेशन हम लोग ने we can initiate with the Jagar Institute of Management एक किया है कि जहाँ पे हम लोग ने करियर काउंसलिंग पे अपने जो कानपुर के रिनाउंड जो मोटिवेशन स्पीकर हैं डॉक्टर अरुण सोनी जी को हम लोग ने इनवाइट करके आज स्टूडेंट्स को हम उन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे व्हाट कि जो उनके अंदर एक डाउट्स हमेशा बने रहते हैं कि एट द टाइम ऑफ व्हेन दे आर इन ग्रेजुएशन और द पोस्ट ग्रेजुएशन उन लोग को ये एक क्लियर पिक्चर नहीं रहती है कि आफ्टर द ग्रेजुएशन और आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस, कौन कौन से हैं, कहाँ पे हम लोग अपना करियर को एक हाइट पे पहुंचा सकते हैं। एंड मेरे ख्याल से अगर आज अरुण सोनी जी हम लोग के बीच में हैं तो आज जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कनेक्ट हुए हैं मेरे ख्याल से कल से उनके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। He is a motivational speaker, very well-known counselor. मैं देखता हूँ कि not only in कानपुर but the यूपी और इंडिया के अलग-अलग places पे जाके ये जो स्पीचेस देते हैं अपने जो भी एक्सपीरियंस इनका है उस एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और उन यूथ के माइंड को एक जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है उसको एक रिजिडनेस प्रदान करते हैं। मैं ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो सीएसजीएम यूनिवर्सिटी की ओर से अरुण सोनी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि ये एंड वी फील प्राउड कि आज उन्होंने अपना टाइम निकाल के हम लोग के बीच में आज प्रेजेंट हुए हैं और अपने स्टूडेंट्स जो कि मेरे ख्याल से तो शायद ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं बट जो कानपुर के लिए ये जो एक इनिशिएट कर रहे हैं बिकॉज एक उनकी कर्म स्थली जो है वो कानपुरी है और एक डिफेंस में तो काफी लोगों को ये भेज चुके हैं बट मेरे ख्याल से वही फीलिंग्स के साथ ये हमारे कानपुर यूनिवर्सिटी जागरण इंस्टीट्यूट और अदर्स इंस्टीट्यूट के लिए भी किसी भी समय पे अपने पूरी सर्विसेज को देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जहां तक हम लोग काउंसलिंग की बात करें, काउंसलिंग दैट इज नॉट ओनली रिलेटेड विद द करियर, हम लोग की पर्सनल काउंसलिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि करियर जब कभी भी आप लोग बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे सबसे पहले तो आपका जो एक मेंटल स्टेटस है वो स्टेबल होना चाहिए और वो स्टेबिलिटी कौन प्रदान करता है? हमारे काउंसलर। मैं कानपुर यूनिवर्सिटी की ओर से
काउंसलिंग सेल, एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, ये जो पूरे रन कर रहा हूँ मैं, लकली आई एम हेड ओवर देयर। मैं एक मैसेज को बस ये देना चाहता हूँ कि जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, मैं भी दिव्या जी से पूछना चाहूँ कितने फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे आज इन्होंने ज्वाइन किया है, बट प्लीज मैम कोई फैकल्टी मेंबर्स। हाँ सर, हमारी Yes, फैकल्टी sir. ज्वाइंड है, कुछ क्लासेस Okay. चल रही हैं, तो जो भी फ्री फैकल्टीज Right, है ma'am. सभी यहाँ पर ज्वाइंड हैं। राइट, ओके, थैंक यू। मैं बस इसलिए मैंने पूछा, मैं नंबर्स को नहीं जानना चाह रहा था, मैं इसलिए क्योंकि जो हमारे काउंसलर्स की जो भूमिका है, जो काउंसलर्स का दायित्व है, वो अरुण सोनी जी जैसे लोग तो मंथ में या 2 मंथ्स में एक बार आएंगे, बट जो हमारी फैकल्टी है वो फैकल्टी हमारी रेगुलर काउंसलर है, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो आज हम लोग के साथ, अरुण जी के साथ में 1 या 2 घंटे टाइम शेयर करेंगे, बट अपने टीचर्स के साथ वो एवरी डे 6 to 8 आवर्स वो शेयर करते हैं। जो उनके रोल मॉडल होते हैं वो उनकी फैकल्टीज होती हैं। तो जहां पे आप एक बार रोल मॉडल बन गए तो आप काउंसलिंग बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे, क्योंकि काउंसलर्स का मतलब है कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस, फैमिली स्टेटस, इकोनॉमिक साइड, आपका साइकोलॉजिकल साइड, हर एक चीज को जो जज करता है, एसेस करता है, उसके बाद जो आपकी काउंसिल करता है, आपको जो एक मार्गदर्शन देता है, वो इफेक्ट बहुत ही एक रैपिड स्पीड पकड़ लेता है, क्योंकि आप उसकी हर एक बैकग्राउंड के बारे में जानकार हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये बात है, हम लोग, मैं भी काउंसलिंग करता हूँ, बट आज मैं आपके सामने काउंसलर्स के रूप में नहीं हूँ, क्योंकि काउंसलर आज हमारे कीनोट स्पीकर, कीनोट काउंसलर डॉक्टर अरुण सोनी है। मैं तो एज ए डॉक्टर दिव्या चौधरी जैसे मैं एक कोऑर्डिनेटर के रूप में आज मैं आपके सामने एक अपनी भूमिका दिखा रहा हूँ। चीजों को कहने का मतलब ये है कि हम अपने सिर्फ स्टूडेंट्स की ही काउंसलिंग अरुण सोनी जी जैसे काउंसलर्स से ना कराएं, बल्कि हम अपने फैकल्टीज के लिए भी एक काउंसलिंग सेशंस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैं दिव्या जी से रिक्वेस्ट है मेरी कि अपने फैकल्टी मेंबर्स, क्योंकि यही फैकल्टी मेंबर एक आपकी चेन है, जैसे हमने जो यहाँ से स्टार्टिंग करी, चाहे मैं इसमें जुड़ा हूँ, अरुण सोनी जी जुड़े हों, हमने फैकल्टीज मेंबर्स को एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे ले आए कि जहाँ पे वो एवरी डे अपने स्टूडेंट्स के लिए विद अंडर योर मतलब पैटर्नशिप, आपकी पैटर्नशिप पे, कि हम लोग वीक में आपके टीचर्स, आपके फैकल्टी, उनके लिए एक सेशंस ऑर्गेनाइज करें एवरी डे। उनका एक ऐसा सेशन हो जहाँ पे उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये मैं बता दूं, जब हम करियर से रिलेटेड कोई भी काउंसलिंग करते हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग का जो फोकस होता है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पे रहता है। क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैं यहाँ पे प्लेसमेंट ड्राइव्स कराता हूँ, कि जो कोई कंपनीज आती हैं वो कहते हैं मेरे पास जॉब्स की कोई कमी नहीं है, बट वी नीड अ एप्रोप्रिएट पर्सन, कैंडिडेट, जो कि मैंने देखा है कि उसके पास नॉलेज होती है बट उसका प्रेजेंटेशन नहीं होता है। तो अगर हम लोग चाहूंगी जी आपकी मैम, बात को बीच में रखते हुए कि हम लोग हर सैटरडे को हमारा एक प्रोग्राम चलता है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग के नाम से, जिसमें आपने जो बात कही उसी को ध्यान में रखते हुए कि सबसे अच्छा टीचर जो है, जो रोज हमारे बच्चों के साथ रहता है, वो हमारी फैकल्टी खुद है। इसके अंतर्गत हमारा एक पूरा कंप्लीट मॉड्यूल क्रिएटेड है, जिसके अंतर्गत सिर्फ सैटरडे को हम एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स पे बातें नहीं करते हैं। सैटरडे के दिन हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड अलग अलग मॉड्यूल पे वर्क करते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हो, चाहे हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ हो, चाहे वो राइटिंग स्किल्स हो। देयर आर सो मेनी मॉड्यूल्स अंडर इट, जिसकी वजह से मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी पिछले 2 सालों में जितनी भी हमारे प्लेसमेंट ड्राइव के अंतर्गत कंपनीज आती हैं, उन्होंने ये महसूस किया और ये कहा है कि जागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बच्चों की का जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है ड्यूरिंग इंटरव्यू, और जो वो इंटरव्यू में जिस तरीके से आकर के अपने आप को प्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ personality, in terms of greetings, in terms of salutation, that is awesome. We have been complimented, and whenever you will be here, I would like to share the testimonies of those corporate peoples जो कि हम एक छोटी सी बुक में उनसे 2 लाइनों में, शब्दों में लिखवाना पसंद करते हैं, which are future references and learning hints for us also. So this small efforts we are undertaking with, but yes, of course with you we can plan it more better in future. Thank you very much, ma'am.
ये तो जो आपने बता दिया, आपने सुन के कि जो आप लोग ऑलरेडी इनिशिएट कर रहे हैं, दैट इज गुड। और मैं तो चाहूंगा, मैं अरुण सोनी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ऑफलाइन हम लोग कोई एक स्टार्ट, जो आपका सैटरडे को सेशन होता है, then we can join this session We will and we work can it. give us some more output. Certainly, Okay. we will sit on it and we will work over the table over for it. Right, ma'am. So basically मेरा पर्पस यही था कि हम लोग जो जिस तरीके का कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्योंकि मैंने देखा है कि इंटरव्यू टेक्निक्स जब चाहे अरुण जी सिखाते हों या अपने सेशंस लेते हों, हम लोग उसी पे ही फोकस करना चाहते हैं कि क्योंकि मैंने जब HR रिक्रूटर्स को देखा कि उन लोग की क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है, उन लोग का फर्स्ट रिक्वायरमेंट प्रेजेंटेशन रहता है कि आपका जो प्रेजेंटेशन अगर इफेक्टिव है, देन मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं उनको एब्जॉर्ब ना कर पाऊँ। एक गलत एक मैसेज इस समय सोसाइटी में जा रहा है कि जॉब्स की कमियां हैं। जॉब्स की कोई कमी नहीं है अगर हम कानपुर में बट उस तरीके का एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर ले। मैंने तो आउट ऑफ वे जाके डॉक्टर दिव्या से भी एक बार बात करी थी कि हम लोग जो कानपुर के मेन इंस्टीट्यूशंस अगर कोलैबोरेट हो जाएं तो हम लोग एक अपने स्टूडेंट्स के लिए, that's a students, not only the जागरण स्टूडेंट्स, ऑल ओवर द जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कानपुर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं, उन लोग के लिए हम एक जॉइंट एफर्ट्स कर सकते हैं। मैं इसमें सपोर्ट सोनी जी का भी लेना चाहूंगा, क्योंकि जब कभी हम लोग इस तरीके के सेशंस को ऑर्गेनाइज करेंगे, और मेरे ख्याल से मैंने अगर सोच लिया है तो विद इन 2 और 3 मंथ्स अगर कोरोना एक नॉर्मल स्टेज पे आ गया तो हम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे। और उसके पहले एक मोटिवेशनल सेशन, एक ट्रेनिंग सेशन हम लोग अरुण सोनी जी के सपोर्ट से हम लोग जरूर इस चीज को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो आज मैं सिर्फ इतना ही एक भूमिका के रूप में आपके सामने आया, और जब कभी काउंसलर्स के रूप में आऊंगा तो एक अलग पार्ट होगा। और क्योंकि आज हमारे कीनोट स्पीकर, कीनोट काउंसलर डॉक्टर अरुण सोनी जी हैं, तो हम लोग उनके जो वर्ड्स हैं, उनके जो टिप्स हैं, उनको हम लोग सुनने को बेताब हैं। थैंक यू वेरी मच। Thanks a lot, Sudhanshu sir. And I would say for this great initiative, sir, heartily thanks. And on behalf of Jagran Institute of Management, you will be getting, sir, infinite support for all this type of associations. Thank you. Thank you very much. Thanks a lot, sir. So before proceeding, we do have with us Jain Gupta, sir, CEO, Jagran Education Foundation. I would like to heartily welcome you, sir, on this webinar session. Now, it gives me an immense pleasure to invite a very prominent and a renowned guest speaker for today's webinar, Mr. Arunen Soni, Director, UCI. Sir, heartily welcome. Over to you, sir. Thank you. Good morning. And Sudhanshu ji, let me begin with one thing. Or Divya ji, you too have been role model for me too. Right from March onwards, जिस तरह से आपने हाइपर एक्टिव होकर के पूरे कोरोना टेन्योर या जो पूरा उसका पीरियड था, उस पीरियड में जितना सक्सेसफुली आपने चीजों को मैनेज किया है. Sudhanshu ji had not been active for like for university only, but his role, the role he played in the city, स्मार्ट सिटी के जैसे वो एम्बेसडर बन के जिस तरह से उन्होंने काम किया है. सर गुड मॉर्निंग सर, वेलकम यू जयन सर. तो जिस तरह से आपने वहां पर पूरा रोल प्ले किया, ये रोल कहीं ना कहीं हम सबको ट्रिगर देता रहा है कि एक बार वापस एवरीथिंग इज गोइंग टू बी नॉर्मल विद अ चेंज नेम न्यू नॉर्मल. सो वी आर इनटू न्यू नॉर्मल, और उस न्यू नॉर्मल के अकॉर्डिंगली हमको अब आगे चलना है. सक्सेस का एक बहुत सिंपल सा जो मेरा फॉर्मूला है, जिस पर मैं विश्वास करता हूं, वो दो चीजों पे है. द फर्स्ट थिंग, यू शुड नो द पास्ट. जो भी आप करने जा रहे हो, वट एवर करियर यू आर ऑप्टिंग, यू हैव टू नो द पास्ट एंड देन फ्यूचर. सो वंस यू नो द पास्ट एंड द फ्यूचर, तो आप उसके बीच का एक प्रॉपर आप अपना एक लाइन बना सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं. जैसे एक यहां पर अगर इसकी बात की जाए, तो अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो विकिपीडिया में आपको एंगस मैडिसन का एक पूरा एक इमेज मिलेगा, जिसमें उन्होंने एनालिसिस किया हुआ है इंडियन इकोनॉमी को लेकर के. तो आज जब फ्यूचर एमबीएस का मतलब गेटिंग इनटू बिजनेस, या फ्यूचर एमसीएस मींस यू आर गेटिंग इनटू बिजनेस, जब आप एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल पे एंट्री कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में यू शुड नो द पास्ट ऑफ इंडियन कंपनीज एंड पास्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज वेल. तो मैं यहाँ पर सिद्धांशु जी थोड़ा सा पीछे ले जाकर के ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट एडी में, इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट एडी,
दुनिया के जीडीपी में इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन था दैट वाज 23% से ज्यादा, इट वाज ऑलमोस्ट 33%। एक ऐसी कंट्री जिसका बिजनेस कंट्रीब्यूशन 33% था, वो इंडिपेंडेंट होने के बाद में 1970 आते आते 2.5 बचा। मतलब हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन खत्म हो गया ऑलमोस्ट ने। एंड देन दैट वाज द ओनली रीजन कि हमें यूएनओ में भी वो वैल्यू नहीं मिली जो मिलना चाहिए थी। आज हम परेशान हैं कि कैसे हमारा वहां पर एक परमानेंट सीट हो जाए सिक्योरिटी काउंसिल में, दो वी डिजर्व इट नाउ, क्योंकि इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड यू ऑल आर स्टैंडिंग एट द थ्रेशोल्ड ऑफ अ चेंजिंग वर्ल्ड। ये जो दुनिया बदल रही है, उस दुनिया बदलती दुनिया में आप उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जहां इंडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। सो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर एमसीएस पार्टिसिपेटिंग, मैं उनको ये बताना चाह रहा हूं, सिद्धांशु जी थोड़ा इससे वाक्य रखेंगे, दिव्या जी भी, कि 2000 वाज द ईयर जब Y2K प्रॉब्लम आई थी और पूरी दुनिया में बहुत जरूरत थी कि किस तरह से हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को और एमसीएस को लेकर के आए, एंड दे चेंज्ड इट एवरीथिंग। यहां से जो मैसिव एक्सोडस हुआ या माइग्रेशन हुआ, सिलिकॉन वैली ऐसे ही नहीं बन गया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग इंडियन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं, उनका रोल रहा है। वो कंट्री जहां 74 के पहले कंप्यूटर का नामो निशान नहीं था, आज वो कंट्री दुनिया के टोटल सॉफ्टवेयर बिजनेस का में 5% रोल प्ले करता है इन प्रोवाइडिंग ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स जो हमारा है, राइट। दुनिया में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बट जो यहां से माइग्रेट होके जा रहे हैं, मैं उनका बात कर रहा हूं। इंडिया में खुद बहुत बड़ा रोल है जो एमसीएस प्ले कर रहे हैं, और फिर सारी चीजें बदलती हैं। तो व्हाट इज नीडेड, यू अंडरस्टैंड वो बिजनेस मॉडल कि जो पहले दुनिया को किसने चलाया, और उस बिजनेस मॉडल पे आना कि आज हम किस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए हैं। दिव्या जी ने एक बात कही थी फ्लेक्सिबिलिटी की। There's such a term, you need to be flexible every day, every moment with the changing world. Had Nokia been flexible, right? Had Kodak been flexible, so their picture would have been different today. वो नहीं हो जाते जो आज कोडैक पहुंच गया। अगर आपने केस स्टडी किया हो तो आपको पता होगा कोडैक का कि पौने 2 एम्प्लॉइज के साथ में वो तैयार नहीं था कि आने वाले टाइम में कैमरे का मॉडल बदलेगा। और किसी ने आज इफ यू हैपन टू बी इन कानपुर और अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के सामने से निकले तो आप देखें स्टॉक एक्सचेंज क्या हो चुका है। डू वी डू ट्रेडिंग फ्रॉम देयर, या वो कुछ और बन चुका है। ऑफिसेस दूसरे बन चुके हैं, वहां पर शायद हिंदुस्तान का ऑफिस भी है ऊपर न्यूज़पेपर का। बहुत सारे जो चेंजेस हो गए, ये चेंजेस बदलते वक्त की को रियलाइज करनी है। ये जो 4 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए हैं, वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को आपको बहुत सीरियसली समझना है, अंडरस्टैंड करना है, और उसके द्वारा जो बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है उसको अंडरस्टैंड करना है। सो 18th सेंचुरी में जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, वो चेंज एक लेकर के आता है जिसमें स्टीम बेस्ड इंजन आता है। इसके बाद में जो सेकेंड रिवॉल्यूशन होता है, जहां मैस प्रोडक्शन शुरू होता है, जहां से हम फोर्ड की बात कर सकते हैं, हेनरी फोर्ड जैसे लोग आते हैं। थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जहां से इंडियन इकोनॉमी ग्रो करना शुरू करती है, वो थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू होता है एक्चुअली 1970 के आसपास में विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। लेकिन आज अगर हम 2020 में बैठ करके बात करेंगे कि कंप्यूटर की बात करेंगे, तो वी आर एब्सोल्युटली ऑब्सोलीट और आउटडेटेड, बिकॉज दिस इज नॉट द टाइम ऑफ कंप्यूटर। वी आर नॉट सपोज टू टॉक ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि जो फर्स्ट कंप्यूटर अगर हम प्लान करें और आज आपके मोबाइल की बात करें तो ये 10 लाख गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका है आपको मोबाइल। तो अब जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, जो चौथा रिवॉल्यूशन है, वो रिवॉल्यूशन है किस चीज का? वो रिवॉल्यूशन है आपका कनेक्टिविटी का। और कनेक्टिविटी में कैसे नए बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं वो समझना है। कनेक्टिविटी की वजह से क्या चेंजेस हो रहे हैं हमें वो समझना है। इंटरनेट कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है वो समझना है। आप सिर्फ फिलिप कॉटलर को या कूंट्ज को आप सिर्फ उनकी फिलॉसफी से काम नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ उस पर नहीं चल सकते हैं। दैट इज वन आउटलाइन जो आपको देगा कि अब आप अपना फ्यूचर कैसे बिल्ड करो। तो उस आउटलाइन को करंट केस स्टडीज से अगर आप ब्लेंड करोगे, देन यू विल फाइंड कि दुनिया कितनी चेंज हो चुकी है, और उस चेंजिंग वर्ल्ड में अब आपका जो बिजनेस मॉडल है या आपका जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो कैसे चेंज होगा।
एक चीज से आप सभी वाकया रखते होंगे, नॉलेज जो है वो सबसे बड़ा की एलिमेंट है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि नंदन नीलकेनी ने एक बुक लिखी हुई है रिबूटिंग इंडिया, अगर आपने नहीं पढ़ी है, एंड इफ यू हैपन टू गेट इनटू इन टुडेज वर्ल्ड करियर, तो आप इसको जरूर पढ़िए, रिबूटिंग इंडिया। ये आपको सारे चेंजेस दिखा देगा कि राइट फ्रॉम चेंजिंग योर आधार कार्ड से लेकर के नेट बैंकिंग से लेकर के, अब आपको एक बड़ी सरप्राइजिंग बात बताएं, 50% एटीएम्स आर क्लोज, वो एटीएम्स बंद हो चुके हैं क्योंकि ट्रांजैक्शन हम भीम में, हम पेटीएम में और हम दूसरे मॉडल्स में पहुंच चुके हैं। अगर 50% एटीएम्स बंद हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने भी एटीएम शुरू भी नहीं किया होगा, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस स्पीड से दुनिया बदल रही है, अगर उस स्पीड को आप नहीं पकड़ पाए तो शायद आप लूजर हो गए। अभी पीछे किसी वेबिनार में कहीं कन्वोकेशन था या कुछ ऐसा था, मैं मोदी जी को सुन रहा था अभी एक हफ्ते पहले, और उन्होंने बात कहा था, एक बात कही थी, वो लाइन मुझे भी याद है, तेज स्पीड। अगर हम तेज और स्पीड नहीं हुए, एक और हम 5G की बात करते हैं, एक और हम इतना बड़े चेंजेस की बात करते हैं, हाउ कैन वी बी स्लो? आई मीन जस्ट इमेजिन, 20 मिनट पहले मैं फैशन और आर्किटेक्ट पे फिजिकल, इट वाज नॉट वेबिनार, मैं फिजिकल एक कॉलेज में इंटरेक्शन करके आ रहा हूँ स्टूडेंट से, एंड देन आई वाज बैक टू माय ऑफिस, और मैं यहाँ आपसे बैठ करके मैनेजमेंट पे बात कर रहा हूँ। हमें इन सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा। सबसे बड़ी चीज है कि हमें अपना नॉलेज बहुत बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसमें आपको समझना होगा किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, किस तरह के डायमेंशंस को, वो आपके इमीडिएट वर्क को नहीं जज करेंगे, वो आपके फ्यूचर प्रोजेक्शन को जज करेंगे कि आने वाले टाइम में ये बंदा कैसा होगा, क्या इसको इस तरह के चेंजिंग एनवायरमेंट की नॉलेज है। So you need to change yourself right from the day one. And ये मैंने पहले भी बोला है, जब लास्ट ईयर में आया था और दिव्या जी ने मुझे इनवाइट किया था कि बच्चों से मुझे ओरिएंटेशन करना है, तब मैं ये बात कह करके आया था, मैं कुछ बुक्स दे करके आया था कि आप सजेस्ट करके आया था कि आपको ये पढ़ो। मैं आपको बताता हूँ किस्सा, कैसे हम शेप लेती है हमारी लाइफ, कैसे हमारा करियर शेप लेता है। वे बैक इन 1991 मैं ग्रेजुएशन कर रहा था एक छोटे से गांव से, छोटे से शहर से, जहां पर हिंदी मीडियम था सब कुछ। देन समवन सजेस्टेड मी, उस समय मुझे किसी ने सजेस्ट किया था एल्विन टॉफलर को पढ़ना। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड एल्विन टॉफलर, लेकिन मैंने कोशिश की, मैंने उनकी थर्ड वेव पढ़ी, मैंने पावर शिफ्ट पढ़ी, तो मेरा दिमाग खुलना शुरू हुआ, मैंने विजुअलाइज करना शुरू किया कि चीजों, दुनिया क्या है। हमें कुएं की मेंढक नहीं बनना है, हमें उससे बाहर निकल करके विजुअलाइज करना है चीजों को, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली with great counselors, with faculty, with support of Google, with support of your interactive sessions with your friends. You have to do all this with you. और तब उन चेंज हमने तो, हम लोगों का जो, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो करियर की शुरुआत जब हुई थी वे बैक 1994 में, तब तो एलपीजी का इम्पैक्ट शुरू हुआ था। 91 में एलपीजी का इम्पैक्ट शुरू हुआ था, राइट? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की, इंडिया में कंपनीज ने आना शुरू किया था, लेकिन नाउ आफ्टर 16, 17, 18 years एवरीथिंग इज एस्टैब्लिश्ड, सब एस्टैब्लिश्ड हो गया है और सब कुछ नए मॉडल पे चला गया है। नाउ गेटिंग द जॉब एंड वर्किंग ऑन दैट, एकदम से सारी चीजें बिल्कुल बदल चुकी हैं, तो आपको उससे बदलना, आपको उससे अपने आप को डेवलप करना होगा। सिर्फ बुकिश नॉलेज वर्क नहीं करेगी। यू नीड टू नो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, आईओटी क्या होती है, राइट? इंटरनेट ऑफ द थिंग्स क्या होती है, क्योंकि आप इन बिजनेस मॉडल्स पे जाएंगे। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि आप देखिए गुड़गांव, दिल्ली, बॉम्बे, इन सारे मेगा मेट्रोस का एक ग्रेजुएट, स्मार्ट ग्रेजुएट कोई लड़का होता है और वो एक नए बिजनेस मॉडल पे उतरता है और उसको खड़ा कर देता है, कहां ले जा करके, वो हमें ओला, उबर और इस तरह की कंपनियों से उनका पता है। दिस इज व्हाट द फ्यूचर। तो किस तरह की इंडस्ट्री में आप काम करने का प्लान कर रहे हो? व्हाइट गुड्स में काम करोगे, एफएमसीजी में काम करोगे? अगर एफएमसीजी में काम करोगे तो एफएमसीजी का क्या अभी करंट जो बिजनेस स्ट्रक्चर है वो क्या है, दैट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। जिस 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 जो आपकी ड्रीम कंपनी है, वो ड्रीम कंपनी का इतिहास पता होना जरूरी है आपके लिए। जब आप वो सारी चीजें पता करके चलेंगे, कहते हैं ना, आपने आपने अगर शायद उसकी कहानी सुनी होगी कि मैंने एक छोटी सी कहानी मैं यहाँ पर आपके संग शेयर करना चाहता हूँ।
डेविड और गोलियत की कहानी। तो उसमें ये होता है, इजिप्ट का और इजराइल का केस है कि एक इजिप्ट का बहुत बड़ा जायंट होता है और इजराइल का एक छोटा सा लड़का है जो कि उसको मारता है, राइट, एंड द सोल्जर वाज सो स्ट्रांग। तो यहाँ पर कहानी का निचोड़ ये है कि आप उसके बारे में सब कुछ जान जाओ, जो आपका ड्रीम कंपनी है, जो आपकी ड्रीम जॉब है। ऐसा नहीं है वेयर आई एम टुडे इट्स बिकॉज इट वाज ऑल नॉर्मल फॉर मी, नहीं, इट वाज नॉट नॉर्मल। आफ्टर कंप्लीटिंग माय एमबीए, लेट मी शेयर और लेट मी डिस्क्लोज समथिंग। आफ्टर कंप्लीटिंग माय एमबीए 94, व्हेन यू डू योर एमबीए ना, यू ऑल ड्रीम बिग, क्योंकि एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग जैसी, एएनएम जैसी मैगजीन और इतनी सारी चीजें हमें एक इतना चमक दमक की दुनिया दिखा देती हैं कि हम ग्राउंड रियलिटी भूल जाते हैं। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस आई वाज जस्ट थिंकिंग, ड्रीमिंग बिग कि मैं चैत्रा में जाऊंगा, मैं लिंटास में काम करूंगा, मैं वर्ल्ड की रिनाउंड एफएमसीजी में काम करूंगा। इतने सारे ड्रीम थे। वंस यू विद योर रिज्यूमे गेट ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर द जॉब, you will find कि you are standing nowhere until you have the kind of skills। और रियलिटी ये है कि हमें से ज्यादातर लोगों को अपना प्रॉपर इंट्रोड्यूस कराना भी नहीं आता है, इंट्रोड्यूस कराना नहीं आता है, क्योंकि अब तो फिर भी वर्ल्ड चेंज हो गया है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम अपनी उन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। सिद्धांशु जी ने यहाँ पर आपसे लैंग्वेज की बात की है। आप मुझे ये बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश? कितने सारे लोग कंफर्टेबल हैं? दोज हु आर कंफर्टेबल दे शुड डेवलप कंटेंट, उनको फिर कंटेंट पे काम करना चाहिए। जिनका बेसिक अभी अगर कम्युनिकेशन में भी नहीं है, दे शुड वर्क ऑन कम्युनिकेशन, राइट? योर फैकल्टी, योर डायरेक्टर, योर इंस्टीट्यूट इज सपोर्टिंग यू, बट बियॉन्ड दैट व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट द एप्स, राइट? अगर हमें फिटनेस का ऐप अवेलेबल है तो हमें ग्रूमिंग का ऐप भी अवेलेबल है। यू नीड टू एक्सप्लोर, आपने जाके गूगल में सर्च करना है कि बेस्ट एप्स फॉर कम्युनिकेशन डेवलपमेंट रिलेटेड टू मैनेजमेंट, रिलेटेड टू एमसीएस, एंड यू कैन फाइंड आउट, एंड द पीपल दे विल ट्रेन यू ओवर देयर। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। इन चीजों को लेकर के आपको अपने आप को, अपने स्किल्स को डेवलप करना है। छोटी छोटी चीजों को लेकर के चलेंगे, जब चलेंगे लेकर के तो समझ में आएगा। नाउ सी, एक बिजनेस मॉडल की बात करूं मैं यहां पर। अगर हम पिछले 4 साल का ही एनालिसिस कर लें, सिर्फ मैं 4 साल की बात कर रहा हूं, कैन यू इमेजिन द ग्रोथ ऑफ नेटफ्लिक्स? कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन द ग्रोथ ऑफ अमेजन प्राइम? क्या ये चीजें आपसे इंटरव्यू में नहीं पूछा जा सकता? क्या ये नहीं पूछा जा सकता है कि जो दुनिया चेंज हो रही है, जो पोस्ट कोविड चेंजेस आ रहे हैं, क्या हमारा पोस्ट कोविड चेंजेस बहुत ज्यादा वर्क फ्रॉम होम कल्चर नहीं डेवलप कर रहा है? अगर वर्क फ्रॉम होम कल्चर डेवलप कर रहा है, तो यू हैव टू वर्क इन द सेम पेस। उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, वो वैसे ही काम करेंगे। रादर वर्क फ्रॉम होम जब आएगा तो इट्स आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही है, जहां पर आपका फिजिकल डिस्टेंसेस को रखते हुए आपने लोगों के साथ में काम करना है, उस बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड करना है। तो मैं यहां पर सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि इन सारी चीजों को आपको समझना है, छोटी छोटी चीजों को समझना है। सो वन थिंग, जो फर्स्ट चीज होती है, जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, कि हमें एक जो अपना पास्ट है उसके बारे में जाने। इफ यू आर इनटू एमसीए एमबीए, अगर आप एमसीए कर रहे हैं एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ द सिलिकॉन वैली एंड पीपल आउट देयर, देन इट इज यूजलेस। आपको कोडिंग आती है, आपको प्रोग्रामिंग आती है, यू आर परफेक्ट इन एवरीथिंग, लेकिन अगर आपको सत्या नडेला के बारे में नहीं पता है, आपको सुंदर पिचाई के बारे में नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि जो पेन ड्राइव आप यूज करते हो, राइट, इस पेन ड्राइव के पीछे का जो इंसान है, वो इंसान की क्या रूट्स कहीं आपके शहर से जुड़ रही हैं। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द बेसिक थिंग्स यू शुड नो। तो आपको अपने आप एक प्राउड फील होगा, ये प्राउड फील होगा कि आई एम गेनिंग नॉलेज। सी, नॉलेज ये जिसको कहें ज्ञान सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। So every day we all have to do that. We all have to keep grooming ourselves. जब ये चीज होती है, हमने पास्ट जान लिया। Now next step, अब आप जानिए कि जो टॉप बिजनेस हाउसेस हैं, कंट्री के टॉप बिजनेस हाउसेस हैं, जागरण इज वन ऑफ देम, राइट? अगर हम इन बिजनेस हाउसेस की हिस्ट्री को जाने, उनके बैकग्राउंड को जाने, तो हमारा बहुत ज्यादा नॉलेज में इजाफा होगा। जब वो नॉलेज में इजाफा होगा, तब फिर आप बात कर पाएंगे।
अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा मैं आपको बता दूं कि कंट्री के लिए एक जो बहुत प्लस है वो ये है कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग यूथ हमारे पास है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ये अपॉर्चुनिटी कहती है कि हम एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड ले सकते हैं। अब मैंने आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड टर्म यूज कर दिया, अब अगर इस टर्म को मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो फिर शायद मजा नहीं आएगा। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो जो कभी चाइना ने और जो कभी जापान ने यूज किया वो आज हमारे पास है। लेकिन दूसरी ओर बहुत डिप्राइविंग होती है, बहुत डिवास्टेटिंग होती है वो स्टेट जब आप जागरण के एक एडिटोरियल में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि रेलवे में एक वैकेंसी के लिए कितने सारे लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से कितना जो है वो एमबीए और एमसीए। आप देखिए, अगर आपने एमबीए या एमसीए चूज किया है तो अब आपको बिल्कुल भी लुक बैक नहीं करना है कि यू हैव टू चेंज योर करियर। दैट इज नॉट द वे। मैं यहां बताऊं सीएसजीएम से किया हुआ, आई कांट रिकॉल द नेम ऑफ द स्टूडेंट, परहैप्स सिद्धांशु जी विल सपोर्ट मी ऑन दैट। सीएसजीएम का एक स्टूडेंट जिसने एमबीए किया था कुछ 8-10 साल 15 साल पहले, करेंटली ही इज हेडिंग यशराज फिल्म्स। एक कानपुर से निकल करके बंदा यशराज फिल्म्स का कंप्लीट मार्केटिंग हेड बना हुआ है। सो यू कैन अंडरस्टैंड द बिग थिंग, जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है स्किल डेवलपमेंट। अगर आपके अंदर वो कंटेंट और वो स्किल्स हैं, यू आर अनस्टॉपेबल, नो वन कैन स्टॉप यू, एंड दैट वी ऑल ग्रूम विद द चेंजिंग टाइम। मैं बता रहा हूं कैसी सिचुएशंस से मैं गुजरा हूं। प्लेस लाइक झांसी, लैंडेड टू मुंबई, क्योंकि एक डिसीजन जो मैंने स्ट्रांग ले लिया था कि मेरे करियर की शुरुआत किसी मेगा मेट्रो से होना चाहिए। क्योंकि जब आप जून का झोला लेकर के मार्केट में रगड़ते हो तब आप हीरे बनते हो, वरना बहुत कुछ कंफर्टेबल अगर आपकी लाइफ में आ जाएगा तो इट्स डिफिकल्ट टू ग्रो, इट्स डिफिकल्ट टू ग्रो। आई मीन राइट फ्रॉम एनीबडी, टॉक अबाउट एनी बिजनेस पर्सनालिटी, अगर आप उसके बैक में जाकर के देखिए, उसके बैकग्राउंड को देखिए, यू विल फाइंड इट आउट, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की हुई है आगे आने के लिए। वो मेहनत आपको करनी है। बहुत सारी छोटे छोटे केस स्टडीज हैं, उन केस स्टडीज को आप करते हैं, उन केस स्टडीज की तह में जाइए। केस स्टडीज नॉट ओनली लाइक कि आपने यहां पर कर लिया, केस स्टडी को विजुअलाइज कीजिए। नमक की केस स्टडी कीजिए, फाइंड आउट कीजिए गांधी जी का नमक आंदोलन, और वो नमक आंदोलन जिसमें 25 रुपए किलो मिलने वाला नमक, आज अगर हम जाते हैं और वो दुनिया के उन 10 बड़े आंदोलन में जो शामिल है, वो इतना बड़ा केस स्टडी है कि क्यों किया गया था नमक आंदोलन, क्या रीजन था उसके पीछे, क्या बिजनेस था उसके पीछे, और वो जो चीज चली थी वहां से निकल करके आ करके आज वही नमक जब आप कैच का नमक लेते हैं तो किस रेट में जाता है। आफ्टर ऑल इसके पीछे कौन था, कौन लोग थे इसके पीछे, राइट। एक छोटा सा मैं देता हूं, 22 बिलियन अगर हम देखें इंडियन रुपी में, तो ये करंट में नमक का बिजनेस है, ये नमक का बिजनेस है। एक वो नमक आंदोलन जो गांधी जी ने किया, वो बिजनेस यहाँ खड़ा हो जाता है। तो एक छोटे से प्रोडक्ट को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना है आपको। यू हैव टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। वंस यू हैव दैट, यू स्टार्ट फाइंडिंग द रीजन बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ अ प्रोडक्ट। आपने अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ी है, पीएलसी पढ़ी है, तो वो पढ़ना नहीं है, पीएलसी को जीना है, पीएलसी को फाइंड आउट करना है, पीएलसी को देखना है। हम इस समय ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में ज्यादातर कंट्रीज पीएलसी की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मींस, अगर इफ यू कंसीडर योर कंट्री एज अ प्रोडक्ट, सोचो, विजुअलाइज करो, उस ताकत को लेके आओ। आपका कंट्री एक प्रोडक्ट है, और जब हम बात करते हैं न्यू नॉर्मल की, तो यू आर अ न्यू प्रोडक्ट। ये जो नया प्रोडक्ट है, ये नया प्रोडक्ट अभी इंट्रोडक्टरी स्टेज में है, कल के लिए ग्रोथ स्टेज में जाएगा। तो व्हाट नीड टू पुट इनटू ग्रोथ स्टेज and then maturity and finally decline and again starting with the new product। तो आपने ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बोला कि सर जी मैंने तो पीएलसी
पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी तरीके से, लाइफ बॉय का केस स्टडी उठाया था, पीएलसी तैयार कर लिया। पीएलसी को अपने आप से जोड़िए, फील यू आर अ न्यू प्रोडक्ट, राइट? दिस इज योर इंट्रोडक्टरी स्टेज, एंड व्हाट इनपुट इज नीडेड टू मेक इट अ गुड प्रोडक्ट to be sold in the market, and product cannot be sold until a brand is there. So are you happy with your packaging? Are you happy with your packaging, or you need, many elements to decor yourself? That could be your communication skill, that could be your knowledge, that could be your interpersonal skill. When it comes interpersonal, आपने सबने पढ़ा है SWOT, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन हमने क्या उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया? नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो फिर उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। आई एम ओके, यू आर ओके बोलता है कोई भी मैनेजमेंट ग्रेजुएट, बट आई एम ओके का जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन एनालिसिस है, are we able to find it out, or are we able to apply this transaction analysis with our family members, with our father, mother? Do we understand those ego states? तो फिर जब आप इंटरव्यू पे जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि इनिशियली आप किस स्टेट पे हो और इंटरव्यू जो लेने वाला है वो किस स्टेट में है। तो दिस इज responsibility to go up to the adult state, and similarly you have to come down to, and then you have to go for a detailed interview. So whatever we study in management, अगर आप देखो MBA की सिंपल सी फिलोसफी समझ लो कि MBA इज अ कोर्स जो सब कुछ है। आप उसमें अकाउंटिंग पढ़ते हो तो बीकॉम भी आ गया, आप उसमें ऑर्गेनाइजेशन तो साइकोलॉजी भी आ गया, आप उसमें मार्केटिंग पढ़ते हो तो मार्केटिंग भी आ गई। आप ये बता दीजिए उसमें कौन सा सब्जेक्ट है जो छूटा रह जाता है? तो जब इन सारी चीजों को हम जोड़ करके मिला करके चलते हैं तो हमें बाहर की दुनिया से इंटरलिंक करना पड़ता है, हमें कंपनीज को समझना पड़ता है। जब कंप्लीटली पैकेज you will be known as brand, and brand does have actual जो वैल्यू बोलते हैं, जिसको ब्रांड इक्विटी बोलते हैं। जब आपकी वो ब्रांड इक्विटी हो जाएगी तो बोलिए वो ब्रांड इक्विटी होने के बाद वो ब्रांड बिकेगा नहीं मार्केट में, कौन रोक लेगा आपको सक्सेसफुल होने से? तो अपनी पैकेजिंग पे ध्यान दीजिए, अपनी पैकेजिंग, अपने प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए। बी अ वंडरफुल प्रोडक्ट। इफ यू आर अ गुड प्रोडक्ट यू आर अनस्टॉपेबल। एंड प्रोडक्ट से सिर्फ काम नहीं चलेगा, उसके लिए ब्रांड भी बनाना पड़ेगा अपने आप को। एंड यू आर अ ब्रांड, योर नेम इज अ ब्रांड। उस ब्रांड का सोशल मीडिया के थ्रू, उस ब्रांड का उन सारे लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने आप को एक्सप्लोर कराना होगा। इफ यू आर नॉट देयर, he might ask in your interview, just show me your connections in LinkedIn. What he will find, the man is outdated. Though he is young, smart, dynamic, and suitable for the job, but since he is not able to understand the fourth industrial revolution, that is called connectivity, he is outdated. So लाइफ में जो सक्सेस मिलती है वो कनेक्टिविटी से मिलती है, वो कोइंसिडेंस से मिलती है, और वो आपके आसपास का जो पूरा लोग हैं उनसे जुड़ के मिलती है। Whatever I am today, whatever Sudhanshu ji is today, whatever Divya ji is today, or whatever sir you are today, we all are interlinked people. We are web हैं, हम एक दूसरे को देख के मोटिवेट ज्यादा डिजास्टर अगर कोई तो वो कोचिंग इंडस्ट्री हुई है, लेकिन हमने उस पूरे पीरियड में बिकॉज़ वी कीप ऑन सेइंग कि कितना ऐसा होकर के भी हाउ मच एम्बेसडर, स्मार्ट एम्बेसडर की बात हो रही हो, is there, somebody like my friend is there, right? So I cannot, sit back. I need to bounce back. I need to fight. And for that fighting, I need to and we started our YouTube channel. We started teaching from there, initially free, then paid, and gradually what happened, we have several buttons with us, and it is sustained. Now it is on again on the right track, and step off proper. On the other hand, it is change. If you don't change yourself with the changing time, you will be completely changed and outdated, और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि मुझे जो आज बात करनी थी वो ये बात करनी थी कि
पास्ट को उठा लो, सब कुछ समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि यूरोप कैसे इतना ग्रो किया, कैसे, क्या फैक्टर्स थे, वो कौन सा रिवॉल्यूशन था, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसने यूरोप को इतना स्ट्रांग किया, या वो कौन सा रिवॉल्यूशन था जिसने इंडिया को इतना स्ट्रांग किया 1 AD में. It was the biggest thing. 33% GD contribution that was coming from India was the biggest thing. And then हम आज की बात करें 1970 में आकर के हम 2.5 पर रहकर के और हम कैसे फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाते हैं, और वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इवन बीइंग second or one day that I strongly believe in. The only thing is what country seriously needs. The first request है कि लाइक है उसको इतना ऊपर तक ले जाओ कि मैं यहाँ पर इस बात के साथ में जो बात मुझे करना थी हम सभी लोग जवाब दे सकते हैं. सर हेलो. Hello. Sir, the session is really very informative and astonishing, sir. Hello. Yes, sir. Pawan ji. Pawan Yes, ji. sir. Yes. Can you hear me, sir? So what I'm saying, yes, Yes, sir. I'm hearing you. So just what is next, Yes, sir. planning? Yes, sir. आगे का I'm क्या coming on. करना है? Yes, sir. Please. Yes, sir. I'm coming on to it. जी. Sir, we do have some of the questions from our MBA and MCA students who are eager to ask something pertaining to their careers and all. So, should I proceed with some of the questions? Yes, 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 please. Okay. So the first question is of Deepak Tiwari. He's of our MCA students. He asked, how Right. to reach my goals in life with my careers? Okay. Deepak, should I answer or someone else is there? No, sir. मैं आंसर दूं इसका? Yes, Okay. sir. Sure. दीपक जी, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के साथ कोट करना चाहता हूँ. One of my friends, Ajay Srivastava, way back in 1991, he did his MCA from HBTI and I did my MBA from Jhansi, right? अब MCA करने के बाद में he joined TCS और वो बॉम्बे आता है TCS ज्वाइन करके, and I was there, पुणे उसकी पोस्टिंग थी, and this was 2000, वो ईयर हमारा हो रहा था 2000, 1999 था शायद, 1999, 98, 99 था. एंड देन आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जो मूव किया था बहुत बड़ा नंबर यहां से एमसीएस का, स्पेशली इट वाज ह्यूज डिमांड कि कंट्री में जितने हैं भेज दो. लोग माइग्रेट करते रहे, चले गए वहां पर, लेकिन अजय डिडंट गो. ही केप्ट ऑन वर्किंग विद टीसीएस एंड देन ही ज्वाइन कोई एक अमेरिकन कंपनी थी, उसने उसको ज्वाइन किया जो कि क्लॉथिंग में काम कर रही थी, एंड ही वर्क देयर. इंडियन सब्सिडरी पे रहा वो, और जब सब कुछ ओवर हो गया then he went to US and today he is with the same company and is a very senior position. आज उसके 10 तो पेटेंट होंगे कम से कम, सॉफ्टवेयर में पेटेंट होना इज अ बिग थिंग, राइट? तो दीपक, करना यह है आपको कि कहते हैं ना कि कछुआ और खरगोश में कौन तेज भागा, तो नेचुरल सी बात है कि आपको कछुआ बनकर के चलना है, चीजों को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आपकी जो एमसीए की इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री और एमबीए की इंडस्ट्री में काफी डिफरेंस है. यहाँ बहुत पेस चाहिए और वहां बहुत पेशेंस चाहिए. सो हैव पेशेंस, कीप लर्निंग, कीप गेटिंग योरसेल्फ कनेक्टेड एंड कीप मूविंग अहेड. यू विल अचीव वन डे फॉर श्योर व्हाटएवर यू डिजायर. इसमें कोई भी शक नहीं, सर. Wow, sir. Well answered, sir. Well justified answer, I would say, over this. Sir, second we have Ankit Verma from MBA. He asked, what is more valuable for companies? Is it marks or skills? Skills, of course. नेचुरल सी बात है, skills. See, आमिर खान is 10th. जब उसने 10th कंप्लीट किया तो व्हाट हिज फादर डिसाइडेड कि इसको मुझे नासिर हुसैन के साथ में डाल देना है, अपने भाई के साथ में, जहां पर ये जाकर के. सी, एमबीए का जो सबसे बेसिक है, जो सबसे बेसिक है, जैसे ही आप कंप्लीट करके निकलते हैं आपको एकदम ग्राउंड पे काम करना है. मैं अपना एग्जांपल यहां पर देना चाहूंगा उमर जी कि आई वाज वर्किंग विद कोका कोला.
See, I did my MBA from Jhansi University and I was working in sales there. तो मैं एक दिन मिलता हूँ एक बंदे से और मुझे पता चलता है कि इसने IIM से MBA किया हुआ है और ये आया हुआ है, ये मैनेजमेंट ट्रेनी है। तो देन आई गॉट टू नो कि जितने भी लोग कंपनी में रिक्रूट होते थे एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी, उनको 6 मंथ के लिए रूट्स पे डाला जाता था। रूट्स पे डालने का मतलब कि दे यूज टू पुट देमसेल्व्स इनटू ट्रक, जो एक्चुअली में जो सॉफ्ट ड्रिंक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रक जाता है मार्केट में, वो उस ट्रक में जाते थे, एक एक शॉपकीपर से मिलते थे। 6 मंथ वो ये काम करते थे और 6 मंथ के बाद में वो जो IIM अहमदाबाद का बंदा होता था, वो जाकर के फिर चैनल पे बैठ जाता था, जाकर के कॉर्पोरेट पे बैठ जाता था और वो फाइनेंस हेड का सपोर्ट करता था। तो मतलब आपके अगर वो स्किल्स आपके अंदर नहीं है कि अंडरस्टैंड बिजनेस एज अ मॉडल, तो फिर आप फेल हो जाओगे। मार्क्स इज ऑलवेज सेकेंडरी। इनिशियल किक स्टार्ट में तो जरूरी है कि वो होना चाहिए, क्योंकि नेचुरल से आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 10th and 12th, बट गेटिंग अ गुड मार्क्स ओवर हियर इन योर मैनेजमेंट डिग्री वो तो मैंडेटरी है, बट ग्रोथ के लिए आपके अंदर स्किल्स ही होना चाहिए, वो मस्ट। Well answered, sir. Thanks a lot. answered. Next we have sir Akansha Khemka from MBA. Sir, she asked that what would be the suitable definition for choosing best careers? बेस्ट करियर्स चूजिंग के Yeah. लिए। ओके, दिव्या जी, वुड यू लाइक टू आंसर? बस बेस्ट कैरियर तो इसी बात पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी अपनी स्किल्स को कितने अच्छे से हॉर्न कर सकते हैं। अपना फोर्टे डिसाइड करिए, उस फोर्टे पे वर्क करिए, क्योंकि आपका पैशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है करियर से। करियर उसमें ही जाएगा जहां आपका पैशन एक्चुअली आपको ले जाना चाहते हैं, जहां आप अपने पैशन से जाना चाहते हैं। बिकॉज मैंने एक बात कही थी अभी शुरुआत में, जिसको मैं बहुत बिलीव करती हूँ, कि जब तक आप जो काम करते हैं उसको एंजॉय नहीं करेंगे, उसको प्यार नहीं करेंगे और पैशनेट नहीं होंगे उसके बारे में, तब तक career will have no definition, because you can start working looking into the money or anything or the glamour or anything, but until you will not have the passion for the same or you will not have the love for that work, it won't be rewarding. Every reward is not in terms of money. I think Arunenji, So- you can answer much better in your So own. Thanks a lot, Sure. ma'am. in just one line, what's the name of a student who asked? Akansha, sir. Akansha Khemka. So Akanksha, the only She's our answer MBA is student. okay. So the only answer is आज आप जाइए जब घर पे तो Three Idiots देखिए बैठ करके, then you will get your answer. That movie will tell you what you have to do, right? And the rest, Thank you, see, sir. whatever you decide career, you have to shape Of course. yourself in that way only. Simple सी बात है. Thank you, sir. Is there any We do other have a answer? last, yes, sir. We do have a last question from our Ankit Verma. He asked, sir, what is the pattern of hiring by companies in today as per the COVID and epidemic time? So I believe the better answer can come from Divya ji, because she is in touch with the companies and the current processes of hiring. Divya ji. I think she is on a call. So I would say, sir, Okay, please okay. to continue. Okay. So Yeah. see, it's almost 20 years when I left corporate and I got into motivation, career counseling and other things. So post COVID में वापस अगर हम बहुत स्ट्रॉन्ग हायरिंग का एक देखना चाहें प्रोसेस के, तो वो सिर्फ यही होगा कि आप कितना ज्यादा न्यू नॉर्मल को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और इसके अकॉर्डिंगली अपने आप को कितना फिट पा रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम मींस यू शुड नो all the ABCD of the basics of working through Zoom और Google app और whatever, मतलब ये बेसिक्स जो हैं वो तो आना ही आना चाहिए। एंड नेचुरल सी बात है कि हायरिंग का जो पहला पैरामीटर वही होता है कि व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, तो वो आपको भी पता है और वो कंपनी को भी पता है। इट इज अ ब्लेंड ऑफ दीज टू थिंग्स एंड देन यू कैन गो अहेड। बहुत सिंपल से टर्म में यही हमेशा से आता रहा है। अगर आई हैव टू हायर वन टेक्निकल एक्सपर्ट फॉर हैंडलिंग माय बिजनेस, तो नेचुरल सी बात है मैं जरूर जानना चाहूंगा कि वो इंटरनेट savvy है, वो उसको पीपीटी बनाना आता है, उसको किस तरह की करंट मॉडल पे काम हो रहा है,
किस तरह से वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में एसईओ पे वर्क कर रहा है। इफ आई एम रनिंग वन यूट्यूब चैनल, तो मैं उससे रिलेटेड, तो अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो कंपनी यू आर गोइंग फॉर, इवन यू नो वेल इन एडवांस कि इस कंपनी के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स और आपकी एक्सपर्टाइज का मैच कर जाएगा, नेचुरल सी बात है, दैट इज ओनली द वे ऑफ हायरिंग, और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। सो गेट ready to understand this. I recall, one incident when I was a kid, 7 years old, और मैं गांव में था और मेरी बुआ जी को देखने के लिए उनके ससुर जी आए थे, तो उन्होंने रामायण पढ़वाई थी। तो दैट वाज आल्सो अ वे ऑफ लाइक कि इस लड़की को रामायण पढ़ना आता है कि नहीं आता है, क्योंकि हमारे घर में सुबह रामायण होती है। तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स आर रिक्वायर्ड। दैट्स द Thanks a सिंपल lot, sir. आंसर। And sir, I would say that with these justified answers, the students would be highly motivated and they would be focusing more towards their career. And sir, They your should get motivated. That's the yes. only thing. Yeah. And sir, Yes, your please. insight on basic, you have given that Gyan Sarvopari hai. So we would say that students should focus more on their extraordinary skills, their innovativeness and creativity in order to make future move ahead. So sir, with this note, I take this privilege to especially thank Employment Bureau, CSGM University Kanpur, Shudhanshu Rai sir, and Arunan sir for such a highly motivating and astonishing session. And I express my sincere gratitude to the management, our respected director, and all the dignitaries and students for their valuable presence of this session. Last but not the least, I, on behalf of Jagran Incubation and Entrepreneurship Cell, wish to have such more future endeavors in future, sir. Sure. Thanks a Thank you lot. very much. Thank you, everyone. Thank you.